Feel you were a little overtrained for the Olympia? It looked like possibly Yeah. that could have been the issue. Not just overtraining. There were some other things, other calls that were made that were just didn't make any sense. Too personal here, but he was like a brother of mine, basically, like a really close friend who decided to take a different path in life, and I was very, very close to this guy, and he just decided to kind of walk out of my life, which really sucked and blindsided me. That was one person that I thought I could count on for the rest of my life, and wasn't the case. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स, और आज की फर्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये है आर्नो क्लासिक चैम्पियन और हमारे 2023 के मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन डेरेक लंसफोर्ड के बारे में। तो गाइस, आप लोग जानते हो डेरेक और हैनी अब साथ में वर्क नहीं कर रहे हैं बिकॉज हैनी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, बट आर्नो क्लासिक के दौरान भी, सेमिनार के दौरान भी और अभी भी डायरेक्ट कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं हैनी के लिए। आई मीन डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बट उसके बाद भी आप लोग अगर ये क्लिप्स देखोगे आप लोग समझ जाओगे। तो पहले एक क्लिप देखते हैं। For legs, what happened from the Olympia to now? I mean, your legs are What happened? they're enormous. Like I said, man, I got to work right away, but I also got to work right away with Chris Aceto. And let me tell you, he is the real technician. Really? So you think he fixed the problem that was going on? Honestly, it's been insane. This last 4 weeks, every single day changes. It's like I've never seen it before. And I'm not trying to hype anything up. I'm just saying that, like, Just saying what the reality of it's what's the going on. reality of the situation is this is my first prep with Chris Aceto. I enjoyed working with him this prep. Yeah. Did you feel you were a little overtrained for the Olympia? It looked like possibly Yeah. that could have been the issue. Not just overtraining. There were some other things, other calls that were made that were just didn't make any sense. तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट कितना ज़्यादा क्रिस असीतो की तारीफ़ कर रहे हैं और साथ में ये बोल रहे हैं कि ही इज़ अ रियल टेक्नीशियन। लास्ट ईयर भी मुझे अपने लेग्स को ब्रिंग अप करने की ज़रूरत थी, बट इस साल जो हुआ मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और हर रोज़ मेरी बॉडी में, मेरी फिजिक में, मेरे लेग्स पर चेंजेस विजिबल थे। तो ही वॉज रियली हैप्पी, और कुछ एक ऐसा हिंट भी लगा कि इन्होंने ऐसा बोला कि पहले कभी ऐसे रिजल्ट्स इन्होंने विटनेस नहीं करे। बट साथ में गाइस, जो बात सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग या फिर शॉक कर देने वाली है वो ये थी। Obviously, the Olympia sucked. I was the reigning champion, and I took third. And that was a big blow to my ego, and that makes you start to doubt yourself and question a lot of things. Immediately after that, I caught wind that the coach that I had been working with at the time was going to retire. So that meant I was going to lose the coach that I worked with for 4 years. And I was also sponsored by the supplement company that he owns, which we were not really discussing moving forward. I don't want to get too personal here, but he was like a brother of mine, basically, like a really close friend who decided to take a different path in life, and I was very, very close to this guy, and he just decided to kind of walk out of my life, which really sucked and blindsided me. That was one person that I thought I could count on for the rest of my life, and wasn't the case. कि यहाँ पर डायरेक्ट ने क्लियरली ये बोला कि लास्ट ईयर चीज़ें बेहतर होती, लेकिन कुछ ऐसे कॉल्स हुए, कुछ ऐसे डिसीजन मेक करे गए जिन्होंने कुछ सेंस नहीं करा, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हुई। तो आप लोग समझ जाओ यहाँ पर ये किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। एक दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि डायरेक्ट इज़ नो लॉन्गर वर्किंग विद इवोजन। यस गाइस, अब ये स्पॉन्सर्ड एथलीट नहीं है इवोजन के, जिसके बारे में आई थिंक डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ डिसीजन लिए गए थे, ऐसी कुछ कॉल्स मेक करी गई थी जिसने इनको मेंटली थोड़ा सा इम्पैक्ट करा था, और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हुई थी, जिसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पर नहीं थी। उसके बाद गाइस, ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद अगर आप दूसरा एक क्लिप देखोगे आर्नो क्लासिक के बाद में जो सेमिनार वगैरह के अंदर इन्होंने बात करी, तो आप ये देखिए। ओ मैन, तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्लियरली क्या बात हो रही है और क्लियरली किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली यही बता रहे हैं कि मिस्टर ओलंपिया के बाद में जब ये थर्ड प्लेस पर आए थे, पूरी तरह से मेंटली डेविस्टेटेड थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहे थे। उस टाइम पर इनको पता लगा कि इनके फॉर्मर कोच रिटायरमेंट ले रहे हैं, और इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हिट करा। आई मीन, किसको नहीं करेगी गाइस, इतने लंबे टाइम से किसी कोच के साथ वर्क कर रहे हो हु इज़ एक्चुअली द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, जो मतलब अभी नहीं बोलूँगा बेस्ट, अब पहले थे फॉर्मर बेस्ट कोच, बिकॉज अब तो वो ट्रेन कर ही नहीं रहे, लेकिन इससे इनका कोई क्रेडिट वगैरह चला नहीं जाएगा जो उन्होंने करा है अब तक के लिए। लेकिन डायरेक्ट ने यही बताया कि उनको जब ये चीज़ पता लगी तो उनको एक बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। उनके साथ ये बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे थे, और साथ में गाइस वो इनके एक भाई की तरह थे, एक दोस्त की तरह थे।
जिनके साथ में वो सोचते थे कि बहुत लंबे टाइम ये और वर्क करेंगे, बट जब ये चीज़ हुई, उन्होंने एक दूसरा पाथ लिया, तो ये डायरेक्ट को बहुत ज़्यादा मेंटली हिट करने वाली चीज़ थी। और उसके बाद डायरेक्ट ने डिसाइड करा कि भाई मुझे आगे तो जाना ही है किसी न किसी तरीके से। बट डायरेक्ट की बातों से कि आपको नहीं लग रहा थोड़े से सॉल्टी से हैं, थोड़ा सा इनको हिट करा है। और होता है गाइस, मतलब जब आपको कहीं से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो या फिर काफ़ी ज़्यादा होप्स लग जाएं किसी से, और बाद में आपको अचानक से ऐसी चीज़ पता लगे कि भाई मैं इनके साथ तो कम्पीट ही नहीं करूँगा। मतलब आप अगर डायरेक्ट के माइंडसेट के हिसाब से सोचो, तो जब मिस्टर ओलंपिया के टाइटल इन्होंने लास्ट ईयर लूज़ करा था, इनके माइंड में यही होगा कि मैं हैनी के साथ बैठूंगा एंड वी विल फिगर समथिंग आउट, हम इस फिजिक को इम्प्रूव करेंगे। मतलब ऐसे कोच के साथ आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि यस चीज़ें बदल सकती हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक तरीके से ना पूरी तरीके से उन पर लीन डाउन कर रहे थे कि यस ही इज़ हैविंग माई बैक, और ये चीज़ डायरेक्ट ने यहाँ पर क्लिप के अंदर बोली भी। बट जब आपको पता लगा कि भाई अब वो कोच इज़ नो लॉन्गर इज़ गोइंग टू वर्क, और या फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है, या फिर इनको एक किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं होगी, या फिर इनके जो प्लान्स थे पूरी तरीके से वो खत्म हो गए, जिसके साथ आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा मिलता था, आप इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ चलते थे, ही इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी ट्रेनिंग यू। तो इस चीज़ ने इनको कहीं ना कहीं हिट करा, इनकी बातों से ये चीज़ क्लियरली विजिबल है गाइस। ये नाम नहीं ले रहा है, बट बहुत जगह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने इस तरह की बातें करी हैं। तो आप बताओ आपको इस बारे में क्या लगता है? थोड़ा सा हर्ट तो डायरेक्ट हुए हैं, जो चीज़ पता लग रही है बहुत ज़्यादा, बट क्या इस तरह की बातें बोलना एक ऐसे कोच के लिए जो आपको वहाँ से यहाँ तक ले आए? मतलब टोटल डिवीजन का टाइटल भी डायरेक्ट ने हैनी की गाइडेंस के अंदर ही जीता था, और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया के टाइटल भी। तो एनीवेज इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट है राफेल बैंडो के बारे में। यस आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको भी लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ये, तो मैं आपको बता दूं कि राफेल बैंडो को एक इंजरी हुई है। तो ये एक बहुत ही ना सैडनिंग सी न्यूज़ है, बिकॉज राफेल बैंडो ने अनाउंस कर दिया कि अभी उनको एक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा, और इसीलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक कम्पीट करने या फिर इवन बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ये ट्रीटमेंट गाइस इन्होंने बताया कि 30 दिन भी चल सकता है या फिर कुछ महीने भी चल सकता है। इनको एक प्रॉब्लम हुई है परमेबल बाउल के नाम से, ये आपके इंटेस्टाइन में होती है, एंड इस चीज़ के बारे में इन्होंने अपने YouTube वीडियो में जो रिसेंट इन्होंने अपलोड करा है उसके बारे में बात करी। अब यहाँ पर राफेल बैंडो हमें ये भी बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट 100% राफेल को सही कर देगा, बिल्कुल ट्रीट कर देगा। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत बड़ा कोई सेटबैक होगा या फिर ये बाद में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बट जो पीरियड इनका ये होगा रिकवरी वाला, उस पीरियड में इनको 14 से 16 घंटे पूरी तरीके से फास्ट करना होगा। एंड उसके बाद गाइस सिर्फ 1.2 ग्राम यानी 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इनको अपनी डाइट में रखना होगा, जो कि अभी के हिसाब से जिस हिसाब से बॉडी बिल्ड करते हैं, जिस हिसाब से इनकी फिजिक की डिमांड है कम है, साथ में 14 से 16 घंटे फास्ट। मतलब आप समझ रहे हो बॉडी बिल्डर्स को 6 टाइम्स मील्स लेने पड़ते हैं विद अ वेरी स्ट्रांग स्केड्यूल्ड गैप, और यहाँ पर बिल्कुल 14 से 16 घंटे यानी कि दिन के 2/3 पार्ट ऑफ टाइम इनको कुछ नहीं खाना, फास्ट करना है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। साथ में इन्होंने नहीं बताया, बट गाइज एट द सेम टाइम इनको काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करना भी बंद करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो किस बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल्सो इनका ट्रेनिंग लोड भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं रख सकते, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी फिजिक डाउन हो जाएगी, साइज़ इनका गिर जाएगा। और आप जानते हो पिछले 2 सालों से राफेल ट्राई कर रहे हैं मसल और ज़्यादा पुट ऑन करने का, और ज़्यादा बिगर होने का, और ज़्यादा कंपेटिटिव होने का, और ये चीज़ तो राफेल को अब बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। हाँ मसल मेमोरी बाद में किक इन करेगी और इनका फिर से मसल गेन हो जाएगा, उस तरह से उस लेवल पर आ जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कितना ज़्यादा डाउन ये हो जाएंगे। और अगर इस 2-3 महीने गैप में, जो मैं समझता हूँ 2-3 महीने तो इनको कम से कम लगेंगे ही, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये डाउन होगा गाइस, बिकॉज आप फास्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग स्टफ, साथ में इतना ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे, ट्रेन भी उस तरह से नहीं कर पा रहे, और 2-3 महीने की बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट इन पर डालेगी, बिकॉज अभी तक हम जितनी भी इंजरीज देखते हैं या फिर सर्जरीज के थ्रू गुजरते हैं बॉडी बिल्डर्स, तो अपनी डाइट वगैरह उनकी चेंज नहीं होती, वो स्टफ भी यूज़ कर पाते हैं, बट यहाँ तो पूरे 2/3 ऑफ द डे इनको कुछ नहीं खाना। तो आई रियली विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। मैं चाहता हूँ राफेल जल्दी से स्ट्रांगली वापस आएँ, बट इसमें अब कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। एनीवेज इसके बाद चलें अगर नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है अली बिलाल की। और मुझे लगता है गाइस अली बिलाल और ब्रैंडन हेनरिक्सन के बीच में हम बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ देखने वाले हैं, 2-3 कॉम्पिटिशन इनके आपस में होने वाले हैं। अब मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आर्नो क्लासिक ओहायो वॉज नॉट द ओनली शो जहाँ पर अली बिलाल कम्पीट करने वाले थे। नहीं गाइस, अली बिलाल वहाँ जीत गए, बट एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम ये लेकर जाना चाहते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट ईयर इन्होंने कम्पीट करा था पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो में, वहाँ से ये मोमेंटम लेके गए थे मिस्टर ओलंपिया में और 2nd प्लेस पर एंड अप करे। और इस बार इनका मोमेंटम ऑलरेडी देखो कब से जारी है और बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, बिकॉज ही हैज़ वॉन आर्नो क्लासिक ओहायो, हिज फर्स्ट एवर आर्नो क्लासिक। उसके बाद अब ये कम्पीट करने वाले हैं इस साल भी पिट्सबर्ग प्रो में और न्यूयॉर्क प्रो में, और दोनों ही जगह अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। अगेंस्ट हु? अब बहुत सारे नाम हैं आने वाले सामने, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा है वो है ब्रैंडन हेनरिक्सन का। देखो सोर्सेज से पता लग रहा है, अभी तक पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म ब्रैंडन ने नहीं करा, बट
विद द शेप ही इज़ लुकिंग इन, और साथ में जैसा कि समझ में आ रहा है, जैसा कि नज़र आ रहा है, ब्रैंडन मिस्टर ओलंपिया से पहले compete करने वाले हैं दोनों ही शोज़ में, पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, बिकॉज अभी तक हम जानते हैं अली बिलाल ने ऑलमोस्ट सबको बीट कर दिया, रायन टेरी को छोड़ के और साथ में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को छोड़ के। ब्रैंडन से इनका मुकाबला अभी तक हुआ नहीं है, रायन टेरी से ही गॉट बीट लास्ट ईयर। अब ब्रैंडन के सामने देखते हैं ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बट विद द मोमेंटम ही हैज़, आई रियली थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिशन। और सच में अगर अली बिलाल उनसे कहीं ना कहीं एक आध शो में बीट हो भी जाते हैं, तब भी इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ बैटल एंड वेरी टफ नेल टू क्रैक कि भाई यहाँ पर ब्रैंडन इनको बीट कर दें। अब अली बिलाल के बारे में एक और चीज़ है गाइस कि वो इस वक्त पता है किसके साथ वर्क कर रहे हैं। अली बिलाल ने अपने कोच स्विच कर लिए हैं एंड ही इज़ वर्किंग विद क्रिस असीतो। अर्लियर अली बिलाल जब भी कंपीट करते थे ही वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच जॉर्ज फेरा, जिनके अंडर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा, बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक को चेंज करा और लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में भी सेकंड प्लेस लेकर आए। लेकिन बिल्कुल आर्नो क्लासिक से 8 दिन पहले गाइस, 8 दिन पहले कॉम्पिटिशन से इन्होंने कोच स्विच कर लिया। अब देखो इतने शो के करीब आगे कोई कोच स्विच नहीं करता, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, बट ठीक है इनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, बिकॉज जॉर्ज फेरा ने भी कमेंट करके इनको कांग्रेचुलेशंस दी। लेकिन क्रिस असीतो के साथ 8 डेज आउट में इन्होंने ज्वाइन करा। अब अगर मैं इनकी फिजिक की बात करूंगा तो यस, इनकी बैक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखा रही है और हम उम्मीद करते हैं मिस्टर ओलंपिया तक भी वो इंप्रूवमेंट्स जारी रहेंगी। बट हाँ, बैक इतनी ज़्यादा वाइडर साइड पे नहीं है, लेकिन थिकनेस डेफिनेटली ऐड करते जा रहे हैं इनके फ्रेम पर, बहुत ज़्यादा मसल, डेंस मसल ये ऐड करते जा रहे हैं, जहाँ पर रायन टेरी को ये बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। बाकी फ्रंट तो आप इनका जानते हो गाइस, स्कोर आई थिंक इन द बिजनेस किसी की भी नहीं है जैसे अली बिलाल होल्ड करते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल चाकू से लाइनें कट कट करके इनकी ऑब्लिक्स वगैरह, इनके एप्स वगैरह तराशे गए हैं। एनीवेज यहाँ पर देखते हैं आप क्रिस असीतो के साथ इनका कैसा जाता है आने वाला करियर। लेकिन वही है गाइस, क्रिस असीतो एक बहुत अच्छे कोच की तरह उभर के आ रहे हैं, जैसे ही मैट जैनसन और यहाँ पे हमारे हैनी रैमबोर्ड ने रिटायरमेंट अनाउंस करा है। बिकॉज हर एक एथलीट अब क्रिस असीतो के पास जा रहा है, और वैसे पिटोर और स्टेफन किन्जो भी हैं काफ़ी अच्छे नाम, बट इन द रीसेंट टाइम्स क्रिस असीतो के एथलीट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एंड ही इज़ बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी बिग एथलीट। अब देखो नेक्स्ट अपडेट में अगर मैं बात करूँगा तो वो है माइकल क्रीजो की। अब माइकल क्रीजो की काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं अपडेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिकॉज माइकल क्रीजो वो कर रहे हैं गाइस जो हम कब से उन्हें करते हुए देखना चाहते थे। यस, नहीं, अभी भी उन्होंने अपने लेग्स को ट्रेन नहीं करा है, फिर बैक वगैरह, चेस्ट वगैरह को ट्रेन करते हुए इतने ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है, या फिर वैक्यूम हिट करते हुए नहीं दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम गाइज, इन्होंने एक पोजिंग कोच जहाँ तक नज़र आ रहा है हायर कर लिए हैं एंड ही इज सीन पोजिंग प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गाइज इनकी फिजिक को अगर कोई चीज़ चेंज कर सकती है ना, देखो मसल मास कहीं से भी रिक्वायर्ड नहीं है, ही इज़ होल्डिंग इनफ मसल मास टू बैटल एंड बीट एनीबडी। इतने ज़्यादा इनका फ्रेम बिगर है, इतने ज़्यादा जाइगेंटिक ये हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इनको रिक्वायरमेंट थी वो थी पोजिंग प्रैक्टिस की। 10 मिनट में ही ये गैस आउट हो जाते थे। लेकिन अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ही इज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग जो इन्होंने कभी नहीं करा। ही इज़ प्रैक्टिसिंग पोजिंग विद हिज न्यू पोजिंग कोच हु आई बिलीव इज़ अ फॉर्मर बॉडी बिल्डर। और यहाँ पर माइकल क्रीजो काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, और माइकल क्रीजो को इस चीज़ की ज़रूरत है भी इतनी ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है कि अपनी पोजिंग पे वर्क करें, अपने पोज होल्ड करने पे वर्क करें डेली। अगर ये इस चीज़ को 1 घंटा भी देते हैं या फिर आधा घंटा भी देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। और सच में गाइस ये एक ऐसी चीज़ है ना, इनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगी। ऑलरेडी देखो ये टॉप 8 क्रैक कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में, तो अब कुछ माइनर ट्वीक्स करके और अपने मसल मास के साथ में जो इनका फ्रेम है, जैसी सेपरेशन ये दिखाते हैं बिल्कुल क्लीन वाली, क्लासिक वाली, वो चीज़ के साथ में पोजिंग इनकी ऐड करने के बाद में बहुत ज़बरदस्त पैकेज इनका हो जाएगा और टॉप 6 के चांसेस इनके बन जाएंगे। और ये चीज़ आई थिंक माइकल क्रीजो बहुत सही से समझ गए हैं। अब देखो कोच इनके कौन है, पोजिंग कोच नहीं, दूसरे वाले कोच, वो इन्होंने अभी तक रिवील नहीं करा, जबकि 2 से 2.5 महीने पहले इन्होंने बोला था कि आई एम वर्किंग विद अ न्यू कोच। मैंने अपने कोच चेंज कर दिए और जल्दी ही रिवील करूंगा इस बारे में, बट आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ नॉट रिवील दैट। आई थिंक मेरे हिसाब से या तो इन्होंने कोच फिर से चेंज कर लिए हैं, या फिर अपने शो यानी कि पिट्सबर्ग प्रो के टाइम पर ये बिल्कुल रिवील करेंगे, या फिर उसके शो के होने के बाद में। बाकी आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी गाइस, बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो वो है रूबियल मॉस्केरा की, यानी नेक्स्टजिला की। अब आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि मैं नेक्स्टजिला को कवर करूं, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि भाई हर एक शो में वो अनाउंस करते हैं, थोड़ी हाइप बनाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल समझने वाली बात है, मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से, मुझे भी कहीं कहीं ये समझ में नहीं आती चीज़ें, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं। लेकिन एज माई वर्क गाइज, मुझे अपने काम के लिए थोड़ा बहुत इनको कभी कभी कवर करना पड़ेगा जब कोई ऐसी अपडेट आती है। और अभी तो यही अपडेट है कि ही इज़ कम्पीटिंग इन न्यूयॉर्क प्रो, और इसलिए अभी यहाँ पर इनकी अपडेट में आप देखोगे फिजिक
थैंकफुली थोड़ी बहुत चेंज लग रही है, पूरी तरह रिवील इन्होंने नहीं करी, बट हाँ शेप में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपने आर्म्स को ब्रॉटअप कर लिया है, अपडेट्स पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अब देखना तो सिर्फ ये है कि स्टेज पर ये दिखाई देते हैं या फिर इसी तरीके से बिल्कुल लास्ट के 2-3 वीक्स आउट होने पे बैकआउट कर लेते हैं। और अब के कसम से इन्होंने बैकआउट करा ना, सच बता रहा हूँ आपके सामने कि मैं इनको कवर तब तक नहीं करूँगा जब तक ये स्टेज पर नहीं पहुँच जाते, बिकॉज बहुत हो गया मैन, कब तक ऐसे चलेगा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा बुरा समझते हो इनकी अपडेट्स को कवर करना, तो ठीक है अब से ऐसे ही करेंगे। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।